Assalamu alaikum. आज हम today we are going to discuss about a very important topic, which from IELTS, which is in IELTS reading true, false, and not given question. So I'd like to talk about this one, but before going in this detail, I'd like to ask you to please subscribe and share my channel Mob English. Here you can find out CSS, IELTS, and English related solution of everything. So don't forget to press the bell icon button to get updated. Hopefully you will be enjoying the lecture and you will enjoy the next ones. So let's quickly start with a gentle reminder that I have given you already to subscribe the channel Mob English for your better info. We'll directly go toward the first question. It is a very important question in reading, IELTS reading, and that is true, false, and not given question. So, how to attempt this question? For this one, we would first go through 3 sample questions, and I'd like to ask you to just think your own self and try to answer which one is true, which one is false, and which one is not given. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Let's have a look at this one. So first one, पहला ये है जनाब देखें, the majority of people became the victim of the fatal diseases when they turned to the 60. ये statement given होगा और इससे related एक question given होगा जैसे at the age of 60 every person fall prey to the deadly diseases. अब according to this reading statement, this question is true, false or not given. You have to decide. अब आप सोच लें क्या ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन शेयर करता हूँ, आप अपना आंसर अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं. नोट डाउन आंसर टू योर आंसर. सेकंड ये है जी, ईदी फाउंडेशन raises money to pay for education and daily needs of poor people. जबकि इसका क्वेश्चन है ED Foundation spends more of the money raised on the schooling for poor people than on their daily requirements. Have a look at this one. This is the question, this is the reading statement, and this is the question. So what do you think? The information according to the question is true, false or not given? Just try to find out your answer. अपना आंसर अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर हम उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे और मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. तीसरा देख लें. जस्ट ओवर $2 billion are being used for education in the underdeveloped countries. This is the statement and the question is about $2 billion are allocated for the education in the underdeveloped countries at present. Sorry, I couldn't write here at present. इधर at present का word दी है. ठीक है. तो अब at present about $2 billion are allocated for education in the underdeveloped countries. अब अपना इस पे और करें. I am giving you 5 seconds. देख लें ये true statement है according to this question, false है. ये जो information इस reading में given है वो इस क्वेश्चन से मैच नहीं करती या इसमें गिवन नहीं है या नॉट गिवन है. सो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन. अब मैंने आपको 3 स्पेसिमेन दे दिए और इनसे आप अपने अपने होपफुली आंसर्स लिख लिए होंगे. नाउ लेट्स गो टू द रियल आंसर्स. व्हाट आर द आंसर्स? सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में अब देखिए, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ट्रू को किन पैरामीटर्स पे, on which parameters you have to measure this statement is true, this statement is false and this is not true. First, when the information in the statement and the question, जब दोनों information agree कर रही हो, एक दूसरे से मैच कर रही हो, तो उस वक्त वो statement आपकी, उसका आंसर आपका होगा true. How? इसके लिए हिंट देख लें. देखिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं.
लेकिन आप हमेशा कीवर्ड्स पे रिलाई नहीं कर सकते। असल चीज़ किसी टेक्स्ट की उसमें कही हुई बात का सेंस एंड मीनिंग होता है, सो यू हैव टू ऑप्ट फॉर सेंस एंड मीनिंग। तो लिहाजा आपने मोर फोकस रखना है सेंस एंड मीनिंग पे कि दोनों क्वेश्चन और स्टेटमेंट का सेंस और मीनिंग मैच कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एग्री कर रही है या नहीं कर रही। दैट्स व्हाट यू वांट टू थिंक। You don't always rely on the keywords. Definitely keywords are somehow important for you and they give you the clue. अच्छा, और false information जो होती है बेसिक पैरामीटर ये है कि जब इंफॉर्मेशन कंट्रडिक्ट कर रही हो, ऑपोजिट हो, डिसएग्री कर रहा हो, डिसएग्रीमेंट मौजूद हो, इसमें भी वही बात है कि आपने सिर्फ कीवर्ड्स पे रिलाई नहीं करता। समटाइम एक इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें कीवर्ड्स सारे के सारे सेम है लेकिन नॉट लग गया एक में, तो वो तो कंट्रडिक्ट कर गई ना, एक में यस है एक में नो है, यस नहीं लिखा हुआ लेकिन ही पेज द प्राइस, नॉट पेज द प्राइस, नॉट लग गया तो वो, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक द रियल मीनिंग एंड सेंस, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। Third one is not given. Not given is a bit tricky because we are always going for the inferences. तो inference की तरफ हम जा रहे होते हैं तो हमने infer नहीं करना होता। तो focus on sense and meaning, but don't trap yourself. Don't fall in the trap of the inference. मैं इसे डिस्कस करता हूँ later on कि कैसे इससे बचा जा सकता है, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी है ट्रू और फॉल्स की निस्बत भी। चलिए, अब आपने जो आंसर्स, द आंसर्स दैट यू हैव टेक फॉर योर ओन सेल्फ, यू हैव मार्क देम ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। लेट्स हैव अ लुक एट दोज आंसर्स। हियर वी गो। पहला जो आंसर है वो फॉल्स है। तो फॉल्स क्यों है इसकी डिटेल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक here I have given a comparison that you can see the majority of people you can see in the purple color, in the yellow color and in the blue color. The keywords are same. Though the keywords are same, यानी कि दोनों synonym words हैं, majority information match कर रही है। You can see in the first one people became the victim, person, every person fall prey to or become the victim of something are almost same things. शिकार होना कहते हैं इसे उर्दू में, और उसे कहते हैं कि उसे भी शिकार होना कहते हैं, that is a bit different, but overall दोनों का meaning almost same है यहाँ पे। फिर दूसरा आप देख लें जो ब्लू में है, फैटल डिजीज और डेडली डिजीज, ये भी पैरेलल है, एक जैसे लफ्ज हैं और एक जैसा कीवर्ड्स है, मीनिंग है। फिर व्हेन दे टर्न इनटू 60 और एट द एज ऑफ 60, ये भी एक ही बात है 60 साल के होने पे। सो ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन तो सेम है। सो फिर फॉल्स कैसे है, लेट्स चेक आउट। देखें अब हियर यू कैन सी इन द रेड मेजॉरिटी और एवरी, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सेम है, जैसे मैंने आपको नॉट का कंपैरिजन बताया था। लेकिन मेजॉरिटी का मतलब है 100% नहीं है। मेजॉरिटी 60% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है। सो मेजॉरिटी ऑफ 60%, 60 के जो लोग हैं, इसमें ये कहना चाह रहा है कि उनको ऐसे अमराज लाहक होते हैं जो कि फैटल होते हैं, डेडली किस्म के होते हैं। जबकि दूसरे में कह रहा है हर किसी को, एवरी, हेयर एवरी जो दूसरा है इट मीन्स 100%। तो इन्फॉर्मेशन सेम नहीं है बल्कि कंट्रडिक्ट कर रही है। एक में कह रहे हैं मेजॉरिटी है और एक में कह रहे हैं 100% लोग बीमारी का शिकार होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कंट्रडिक्ट कर रही हैं, सेम नहीं है। अपेरेंटली यहाँ पीछे आपने देखे ये कीवर्ड्स सबके सेम थे, तो आपको ऐसा लग रहा है दो द मेजॉरिटी ऑफ द सेम कलर वर्ड्स आर सेम, येट ओनली वन वर्ड इन द बोथ ऑफ दीज, इनमें जो है वो मेजॉरिटी और एवरी है, दैट इज मेकिंग द रियल डिफरेंस। क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में कंपैरिजन हो रहा है, हियर वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन। सो दैट्स व्हाई when you are reading you need to be careful when there is comparison, that can be a trap, and you should not just rely on the keywords. And if you are matching keywords, mean here you can see it looks like that it's true, mean 90% keywords are matching but only one word is making the difference. So that's why you have to focus on the word like all, some, few, more, less, majority, minority, all, every, everyone, everybody, somebody,
इन तमाम लफ्ज़ों पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन, तब आपको रियल सेंस एंड मीनिंग मिलेगा. दैट्स वाई एट दिस टाइम आई हैव डिस्कस्ड दिस एग्जांपल फॉर यू कि आपने इन सब मिलते जुलते लफ्ज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने देखना है कि इसमें रियल डिफरेंस क्या है, और वो रियल डिफरेंस ये है. सो दैट्स वाई इट्स फॉल्स. सभी में एक स्टेटमेंट कह दिया कि मेजॉरिटी होती है, जबकि वो कह रहा है कि सभी लोग जो है वो डेडली डिजीज का शिकार हो जाते हैं. सो दिस वाज द आंसर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपने स्पेशली ये कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स हैं, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, इनका ख़ास तौर पे आपने ध्यान करना है और आपने इन पे फोकस रखना है जब आप रीडिंग कर रहे होंगे. सो दिस इज़ वन हिंट. नाउ लेट्स मूव आउट टू द सेकंड वन. यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखें, अब जो दूसरा था, ईडी फाउंडेशन रेजेस मनी टू पे फॉर एजुकेशन एंड डेली नीड्स ऑफ पुअर पीपल, ये स्टेटमेंट थी और इसका क्वेश्चन था ईडी फाउंडेशन स्पेंड्स. अब ये नॉट गिवन है. अब नॉट गिवन इज मोर ट्रिकी. ये ज़्यादा ट्रिकी कैसे है जनाब? ये देखें, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड, हमारी नेचर है कि वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग फॉल्स और ट्रू. और यहाँ पे मैं एक बड़ी बेहतरीन बात जो फ्रांसिस बेकन ने कही थी वो मेंशन करूँगा. रीड नॉट टू कंट्रडिक्ट, नॉट टू बिलीव, बट टू वे एंड कंसिडर. हम नेचुरली ट्यून हुए होते हैं कि हम हमेशा किसी चीज़ से एग्री या डिसएग्री करने के पैमाने में उसे नाप रहे होते हैं, और ये हर इंसान की और मोस्टली हमारी नेचर है. इसीलिए ये मेरे नज़दीक ज़्यादा ट्रिकी होता है और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम तो ट्रू और फॉल्स को, हम तो मैच और मिस मैच की तरफ और कंट्रडिक्शन की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स वाई what we need to do, we need to keep ourselves a bit neutral. Your mind is tuned to infer the things, but you need not to always infer the thing. देखिए, एक आम सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि फलां स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अली बहुत अच्छा है, तो बाकी 10 स्टूडेंट कहते हैं जी हम बुरे हैं. मैंने कब ये स्टेटमेंट दी कि तुम बुरे हो? ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि तुम बुरे हो या अच्छे हो. ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अली अच्छा स्टूडेंट है. सो इन द सेम वे हम हमेशा वी ऑलवेज गो फॉर इन्फ्रेंसेस. सो ट्राई टू अवॉइड इन्फ्रेंसेस हियर. और यहाँ पे तो हम क्वेश्चन में वी आर ऑलरेडी ट्यून्ड, आवर माइंड इज ट्यून्ड कि वी आर फाइंडिंग ट्रू और फॉल्स, वी आर ट्राई टू मिसमैच और ट्राई टू फाइंड आउट द कंट्रडिक्शन इन द स्टेटमेंट्स. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट इन द ब्लू in highlighted way. Don't fall in the trap of inference. चीज की inference की तरफ जाने की जरूरत नहीं. जो apparently given information है उसी को चेक करने की कोशिश करें कि ये मैच कर रही है और it is contradicting. So let's move on for the justification why it is not given. देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को क्लियरली कर लिया. टू मेक इट शॉर्ट, मैं दोबारा वो स्टेटमेंट्स को रीड आउट नहीं कर रहा. मैं उसमें से देखिए, आप अब जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कंट्रडिक्ट कर रही है वो क्या है? आप कहते हैं रेजेस मनी, दिस इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ मनी, जबकि क्वेश्चन में है स्पेंड द रेज मनी, ये एक्सपेंडिचर के बारे में है. तो आप कहते हैं यार एक कलेक्शन की बात है, एक एक्सपेंडिचर की बात है, तो आपको आप इसे एक हिंट समझते हुए आप क्विकली डिसीजन कर लेते हैं, जैसे हम जल्दी से डिसीजन करते हैं यार ये तो फॉल्स की तरफ हिंट कर रहा है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है. दिस इज नॉट द केस. दूसरा आप देखते हैं एजुकेशनल नीड्स, एक में एजुकेशन की बात हुई है, एक में स्कूलिंग की बात हुई है. ठीक है सर, एक जैसे कीवर्ड्स हैं. नीड्स ऑफ पुअर है और डेली नीड्स ऑफ पुअर है, एक जैसी बात है. आप कहते हैं यार ये तो इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी अब आपने अगर वो सिरा पकड़ लिया तो आपने फॉल्स कर लिया, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप कहेंगे वो इट्स ट्रू. बट इन रियलिटी रियली व्हाट्स द प्रॉब्लम? असल हिंट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं. रियल हिंट देखें, इन रियलिटी क्या है कि आपका जो कंपैरिजन है वो कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के दरमियान गिवन ही नहीं है कि कितने पैसे खर्च हुए आपकी एजुकेशन पे, कितने पैसे आपके खर्च हुए डेली नीड्स पे. यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि जो आप स्टेटमेंट में ये गिवन है कि आपने पैसे जो इकट्ठे करता है वो कलेक्ट्स द मनी या रेज द मनी फॉर एजुकेशन एंड डेली नीड्स, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. जबकि क्वेश्चन आपका कहता है कि वो जो मनी एक्सपेंड करता है वो स्कूलिंग पे ज़्यादा करता है और एजुकेशन पे कम करता है. तो ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ गिवन ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं दिया कि स्कूलिंग पे कितने पे हो रहे हैं, एजुकेशन पे कितने के हो रहे हैं, हाउ मच पेइंग इन स्कूलिंग, हाउ मच पेइंग इन एजुकेशन. So there is no such a comparison is given over there. So that's why this information is not here. No information about the expenses has been given
in the statement, the information about the collection has been given in the statement and the collection for education and daily need. But how much portion is going for the expense of education and how much for the daily needs, that has not been given. So simply the thing has not been given. So sometimes we are forcing our mind, okay okay ये false है, ये false है और false है, और छोटे से hints की base पे आप इसे false कह देते हैं, या सिर्फ schooling और education को देख के आप इसे true कह देते हैं. So again, from the very first thing I am telling you, you have to go for the sense and meaning. Definitely keywords are playing a very important role and you have to focus on the keywords, but mostly IELTS reading में, IELTS listening में आपको keywords पे ही focus करने को कहा जाता है. इसीलिए मैंने कुछ ऐसी examples ली हैं कि keywords से हट के भी चीजें हैं. Mostly आप keywords पे focus रखिए, but you major focus आपका होगा वो sense and meaning पे होगा. So in the sense and meaning, this information has not been given in the statement. That's why the not given is the right question. Hopefully आपको चीजें समझ आ रही होंगी. Now let's move on to the last one. लास्ट वन जो है ये ट्रू है. हाउ इट इज ट्रू? इट्स क्वाइट सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड. हियर वी गो. Just over $2 billion are being used for education in the underdeveloped countries, or at present about $2 billion are allocated for the education in underdeveloped countries. अब इसकी दोनों चीजें, keywords भी मैच कर रहे हैं and sense and meaning भी मैच कर रहे हैं. I have mentioned here, you can see number 1, number 2. अब agreement of keywords, where is the agreement of keywords? Just over 2 billion and about 2 billions, synonym almost. About 2 billions, just over 2 billions. So this is matching information, this is agreement. Again, being used for education, allocated for education, this is agreement. Underdeveloped countries, so keywords are agreeing. Now contrary to the first one, पहली जो हमने एग्जांपल की थी उसमें keywords उसमें भी मैच कर रहे थे, लेकिन एक वर्ड every और majority ने वहां पे डिफरेंस डाल दिया था. वहां पे सेंस वो वेरी कर रहा था सिर्फ इन दो वर्ड्स पे. जैसे यहाँ सेंस देखें क्या है. अब देखें आप यहाँ पे एलोकेटेड और बीइंग यूज्ड, एलोकेट हुई है, इस्तेमाल तो नहीं हुई, इससे यू कैन गेट कंफ्यूज्ड. बट योर एलोकेशन एंड यूजेज का जो थोड़ा सा हल्का सा आपको कंफ्लिक्ट नजर आता है, या इफ यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, so that is countered by just over 2 billion and about 2 billion. तकरीबन से ये काउंटर हो जाता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट सेम है. तकरीबन 2 बिलियन जो है, 2 बिलियन से ऊपर भी हो सकते हैं, 2 बिलियन भी हो सकते हैं, थोड़े से नीचे भी हो सकते हैं, तकरीबन 2 बिलियन. तो ये सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, वो एलोकेट किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं. यानी एलोकेट भी अगर आपने 2 बिलियन किए तो थोड़े से उससे ऊपर आप यूज कर सकते हैं, तो यूज किए जाते हैं. तो सेंस इज सेम. सो इधर और एक और आपको क्लू भी मिल जाएगा. देखिए यू यूज द टेंसेस. यहाँ पे आपने देखें आर बीइंग यूज्ड, पैसिव यूज किया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और एट प्रेजेंट एक एडवर्ब है जो आप यूज करते हैं वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए. सो हियर ईच एंड एवरीथिंग इज मैचिंग and agreeing, so that's why this is absolutely true. And this was that's why this was not given and this was false. I have discussed each and everything with you, and I must say thanks for watching, and please join Mob English for learning more about IELTS, about CSS, about English grammar, about each and every aspect that is related to English. तो आप मोब इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें, और आप उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस आती भी रहें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मोब इंग्लिश, एंड दैट्स इट फॉर यू टुडे. सो अस्सलाम वालेकुम, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द.